we have seen some basics of DNA right now. Now we'll come to that point where this particular DNA needs to be extracted, and how to extract that, what are the different methods of extraction of DNA from different cells and tissues, that we will see in this lecture today. Okay, so before going to start with actual extraction methods, we should know about certain basic principles of this DNA extraction. So what are the basic principles of DNA extraction that we will see first? See, in basic principles of DNA extraction, some steps are there. In any cell or tissue, if you want to extract the DNA, what you need to do first is, suppose there is a bone, this kind of bone is there, suppose, or suppose there is a teeth, isn't it? So this is a kind of teeth that you'll find. So from these tissues, suppose you want to extract the DNA, तो इसमें से अगर डीएनए निकालना है तो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए कि इस टिश्यू को डिसरप्ट करना होगा, डिग्रेड करना होगा, इसको ब्रेक ओपन करना होगा. जब तक कि ये ब्रेक नहीं होगा, इसके सेल्स अलग अलग नहीं होंगे, और जब तक कि इसके सेल्स अलग अलग नहीं होंगे इस तरह से, आपका डीएनए कहां पर प्रेजेंट है? सेल के अंदर. सेल के अंदर भी, सपोज दिस इज अ काइंड ऑफ सेल, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. तो न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट है. तो सबसे पहले आपको टिश्यू को ब्रेक करना होगा. जैसे ही टिश्यू ब्रेक हो जाएगा, फिर आपके सेल मेम्ब्रेन की बारी आएगी, जहां पर सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना होगा. ठीक है. तो ये जो टिश्यू डिसरप्शन है या सेल डिसरप्शन है, ये अलग अलग मेथड से किया जाता है. इट कैन बी डन बाय वेरियस डिफरेंट मेथड्स. फॉर एग्जाम्पल, एंजाइमेटिक मेथड, और इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइमेटिक डाइजेशन, यानी कि एंजाइम्स का यूज करना. एंजाइम्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं जिसके लिए, जिसकी वजह से आपका टिश्यू या सेल डिस्टर्ब हो जाएगा? देखिए, ये सेल जो है, सेल जैसे मैंने आपको बताया था, सेल मेम्ब्रेन से बना, उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है. तो अगर आपको सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है या फिर टिश्यू को भी ब्रेक करना है, तो टिश्यू के अंदर भी जो सेल्स जुड़ी होंगी एक एक दूसरे से, वहां पर बीच में कुछ प्रोटीन्स लगे होंगे. तो अगर आपको प्रोटीन्स रिमूव करना है, तो ऐसा एंजाइम यूज करना होगा जो इन प्रोटीन्स को डिग्रेड कर सके, isn't it? For that, we generally use an enzyme known as proteinase K. This is an enzyme which has the ability, which is having the ability to degrade or to denature the proteins. This is an enzyme, but it has the ability to denature the proteins. Okay, structural proteins like cell membrane proteins or the proteins which are present in between the cells. Okay, so when you will use this enzyme, now your tissue will get disrupt. You have to keep this bone or teeth or the cells along with your proteinase K फॉर लॉन्गर टाइम. एक ट्यूब में आपको रखना है, एक ट्यूब यूज करनी है, जिस ट्यूब में आपको ये सब चीजें, सेल्स या फिर आपका जो भी टिश्यू है, ये टिश्यू इन एंजाइम के साथ प्लेस करके रखना है फॉर लॉन्गर टाइम. जनरली 24 आवर्स के लिए आप रखते हो प्रोटीनेज के इसके प्रॉक्सिमिटी में, so that solution में, so that your proteins will get properly denatured, properly degraded. Along with that, there are some other methods. proteinase के, जैसे मैंने बोला, एंजाइमेटिक मेथड है. उसके अलावा बॉइलिंग से भी, बॉइलिंग अगर आप करते हो या फिर
हाई कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली ट्रीटमेंट्स अगर आप देते हो, so that will also cause the tissue to disrupt or the cell to disrupt. But sometimes there are certain tissues like bones and teeth which are very hard to get degraded. So for such conditions, what you do, you use some other methods like frozen liquid nitrogen conditions where you use mechanical mills. This is a mechanical kind of method. Grinders, इसको क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग भी बोला जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, where you use liquid nitrogen which goes up to minus 196 degrees Celsius, and at this particular temperature your bone or teeth becomes very brittle. जैसे ये ब्रिटल बन जाता है, इजीली इसको पल्वराइज्ड कर सकते हैं, इसका पाउडर बना सकते हैं, जिसको फ्रीजर में कुछ ट्रेड नेम्स है फॉर दिस टाइप ऑफ मशीन्स. SPEX सर्टी प्रेप फ्रीजर मिल एक ट्रेड नेम है, कंपनी का बनाया हुआ मशीन है, जिसके अंदर आप माइनस 196 डिग्री सेल्सियस में इस बोन को या टिथ को पाउडर बना सकते हो. लेकिन आपने सपोज पाउडर बना लिया, उसको पल्वराइज कर दिया. अभी ये देखो, इस ट्यूब में आपको पाउडर दिख रहा है, व्हाइट कलर का पाउडर दिख रहा है. लेकिन जब आप ये पाउडर बनाते हो, आपको मैंने इस पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जो बोन है या फिर टीथ है, इसके अंदर मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स से बने होते हैं. इस मैट्रिक्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम भी है ना. तो वो कैल्शियम आपके डीएनए एक्सट्रैक्शन में इंटरफेयर कर सकता है. सो टू अवॉइड दैट, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कीप this powder along with certain chemicals which will capture those calcium ions. For example, EDTA. EDTA एक केमिकल है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड. इसका काम यह है कि ये कैल्शियम आयंस का सिक्वेस्ट्रेशन करता है. सिक्वेस्ट्रेशन करता है यानी कि उनको कैप्चर कर लेता है, स्कैवेंज करता है, so that it will not interfere during the process of DNA extraction. So you will use this type of chemicals to avoid the interference of calcium ions. So this is the first step. First step आपको टिश्यू और सेल डिस्टर्ब करना है, फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप, जैसे टिश्यू डिस्टर्ब हो गया या फिर सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो गई, अभी आपको क्या करना है. नेक्स्ट स्टेप इज you need to break open the nucleus, because your DNA is present in the nucleus. So for that you have to go for degradation or disruption of cell organelle membranes or cell organelles, isn't it? That will be the next step, that can be named as lysis of cellular and organelle membranes. जैसे ही टिश्यू डिस्टर्ब हो गया, उसके अंदर जो सेल्स है या सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिलीज है, वो ऑर्गेनिलीज की भी एक मेम्ब्रेन बनी होती है. जैसे कि डबल लेयर मेम्ब्रेन्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है. इनके मेम्ब्रेन्स को हमको ब्रेक करना है. ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने के लिए कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे. Those chemicals are generally guanidinium salts or sometimes detergents. Sodium dodecyl sulfate, SDS. In short, it is called as SDS. Now this SDS is a detergent. अगर आप शैम्पूज यूज करते हो या फिर अगर आप पेस्ट, टूथपेस्ट जो यूज करते हैं हम लोग, उस टूथपेस्ट में ये जो फोमिंग होता है, फोम जो आता है, दैट फोम इज ड्यू टू दिस केमिकल नोन एज SDS, सोडियम डोडिसिल सल्फेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज SLS, सोडियम लॉरिल सल्फेट. अगर आप इस लेक्चर के बाद देखना,
आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो वहां पर ये केमिकल लिखा होगा SLS, या फिर जो शैम्पूज यूज करते हो उसमें भी ये केमिकल लिखा होगा, डिटर्जेंट है। तो इसका काम क्या है? दिस केमिकल हैज द एबिलिटी टू फॉर्म और टू डिग्रेड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बनी होती है, या फिर ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन, वो बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स से। फॉस्फोलिपिड्स से बनी होती है ना? तो इन फॉस्फोलिपिड्स को डिसॉल्व करने का काम ये SDS करता है। SDS has the ability to lyse those lipid membranes. So once that particular, suppose this is a cell, this is a cell membrane, and this cell membrane is made up of phospholipids like this, bilayer, ये bilayer होती है, ठीक है। और इसके अंदर न्यूक्लियस है जिसके अंदर DNA है। ओके, सबसे पहले अब ये टिश्यू था, टिश्यू को आपने ब्रेक किया, सेल आई, सेल को आपने ब्रेक किया बाय द हेल्प ऑफ SDS और अदर केमिकल्स, डिटर्जेंट्स। सो नाउ इट इज ओपन, ये ओपन हो गया, ठीक है। ये सेल यहां से ब्रेक हो गई, सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो बाहर आ गया। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो बनी हुई है वो किस चीज से बनी है? उसके अंदर भी ये लिपिड्स है। तो उन लिपिड्स को भी ये SDS जो है वो ब्रेक करेगा। ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ये ब्रेक हो गया, इसके अंदर जो DNA था वो बाहर आ जाएगा, DNA बाहर आया। लेकिन साथ साथ में सिर्फ यहाँ पर एक ही सेल ऑर्गेनेली नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, यहाँ पर लाइसोसोम्स भी है, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो अब क्या होगा, जब ये DNA बाहर आएगा, ये DNA इस तरह से जब बाहर आएगा जीनोम, इसके ऊपर इन लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो एक्ट करेंगे। कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट है यहाँ पर? एंडोजिनस डीएनेजेस, इसको बोला जाता है एंडोजिनस डीएनेजेस। एंडोजिनस यानी कि सेल के खुद के एंडोजिनस डीएनेजेस। डीएनेजेस क्या है? ये होते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस यानी कि DNA को डिग्रेड करने वाले एंजाइम। ये कहां पर प्रेजेंट है? लाइसोसोम्स में। लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि जो बाहर के कोई बैक्टीरिया या बाहर का कोई वायरल DNA अगर अपनी सेल के अंदर एंटर करता है, तो उसके DNA को या फिर उसके RNA को डिग्रेड करने के लिए ये डीएनेजेस यूजफुल है। कौन से? जो लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है ये एंजाइम्स। अभी अगर आपका खुद का DNA बाहर आ चुका है सेल के अंदर, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ आवर enzymes that we are using, detergents that we are using, so your lysosomes will also break open and their enzymes will come out, and there is a chance that these DNases will act on your DNA, your cell DNA, so that it will get degraded. It will get degraded. But these DNases are enzymes. These enzymes, suppose this is an enzyme which is going to act on the DNA and it will break the DNA. But what if this DNase is inactive? अगर ये inactive है तो आप इस DNA को बचा सकते हो। तो हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इसमें कुछ ऐसा केमिकल डालना है जो कि इस डीएनएज को इनएक्टिव करे। इनएक्टिव कैसे होगा? अब ये एंजाइम है, तो इस एंजाइम को वर्क करने के लिए कुछ कोफैक्टर्स लगते हैं। कोफैक्टर्स लाइक मैग्नीशियम आयंस। मैग्नीशियम आयंस, जब तक के मैग्नीशियम आयंस इसके साथ जुड़ेंगे नहीं, ये एक्टिव नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको इसको इनएक्टिव करना है तो हम ऐसा केमिकल डालेंगे जो मैग्नीशियम आयंस को ही चिलेट कर देगा। हमने इसके पहले देखा था EDTA केमिकल्स को, सॉरी कैल्शियम आयंस को चिलेट कर रहा है। तो यहां पर भी हम EDTA डालेंगे। EDTA डालेंगे तो क्या होगा,
that magnesium ion will get attached to this EDTA, and that magnesium ion will not bind with this DNase enzyme. And if it is not bind with DNase enzyme, it will be not active. And if it is not active, it will not work and not degrade your DNA, which is isolated from the nucleus. Okay, so this is how you can inhibit जो प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स हमने ब्रेक किए हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सिर्फ लिपिड्स ही नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन जो है उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी जुड़े होते हैं। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा, ये ऐसे लिपिड्स बाहर आएंगे, प्रोटीन्स बाहर आएंगे, और बिकॉज यूर डीएनए इज ऑल्सो आउट, ये जो मिक्सचर रहेगा ये ट्यूब के अंदर, सपोज दिस इज अ ट्यूब, ये एक एपेंडोर्फ ट्यूब है, तो अब इस ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आपने सब चीजें डाली थी, EDTA डाला था, सब चीजें डाली थी, अब ये सब चीजें यहां पर प्रेजेंट है मिक्सचर में। लेकिन इस मिक्सचर में क्या क्या प्रेजेंट है, लिपिड भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, और डीएनए भी प्रेजेंट है। हमको एक्सट्रैक्शन करना है, हमको आइसोलेशन करना है, किस चीज का, डीएनए का, प्योर फॉर्म में। वी वांट प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए, सो फॉर दैट वी डोंट नीड दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड कंटेमिनेशन। इन प्रोटीन्स का और लिपिड्स का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू रिमूव दिस प्रोटीन्स, वी नीड टू रिमूव दिस लिपिड्स, है ना। सो दैट कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ वन स्टेप known as solvent extraction. Organic solvents we used to have phenol chloroform mixtures, phenol chloroform mixtures। इस मेथड को फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड या फिर ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फिनॉल और क्लोरोफॉर्म, ये दो सॉल्वेंट्स है, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म दो सॉल्वेंट्स है, साथ साथ में हम एक और केमिकल भी यूज कर सकते हैं, आइसोअमील अल्कोहल, आइसोअमील अल्कोहल। इसका रेशो होता है 25:24:1, यानी कि 25 पार्ट फिनॉल, 24 पार्ट क्लोरोफॉर्म और 1 पार्ट आइसोअमील अल्कोहल। तो जब आप ये इसमें डालोगे, अभी ये जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है, डीएनए along with proteins and along with lipids, but it consists of aqueous phase। ये वाटर में बना हुआ है, aqueous phase है। ठीक है, जब आप इसमें ये आइसोअमील अल्कोहल, फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन डालोगे तो क्या होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लेयर है, यहां पर आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई देंगी। जब ये आप ट्यूब में डालोगे तो आपको एक ऊपर की लेयर दिखाई देगी जो कि वाटर की होगी, वाटर यानी कि एक्वियस फेज, उसमें उसके बाद एक छोटी सी लेयर दिखाई देगी, इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट लेयर, और एक ऑर्गेनिक लेयर दिखाई देगी। क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा नीचे रहेगा क्लोरोफॉर्म। ठीक है, वाटर से भी उसकी डेंसिटी, बिकॉज ऑफ नाउ यू हैव मेड अ कॉम्बिनेशन, दिस क्लोरोफॉर्म इज देयर, so your chloroform will remove, phenol chloroform will remove proteins and lipids। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो है वो क्लोरोफॉर्म की लेयर में आपके लिपिड्स आएंगे, फिनॉल की लेयर में आपके प्रोटीन्स आएंगे, प्रोटीन्स। और जो आइसोअमील अल्कोहल होता है, आइसोअमील अल्कोहल जनरली आप ऐड करते हो टू अवॉइड फोमिंग। जब आप इसको मिक्स करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, देर आर चांसेस ऑफ फॉर्मिंग फोम, फ्रॉथिंग आता है। तो वो फ्रॉथिंग अवॉइड करने के लिए आप आइसोअमील अल्कोहल ऐड करते हो। आइसोअमील अल्कोहल का काम वो है। फिनॉल का काम क्या है, प्रोटीन्स को रिमूव करना,
क्लोरोफॉर्म का काम ये है लिपिड्स को रिमूव करना, आइसोअमील का अल्कोहल का काम है फ्रॉथिंग को अवॉइड करना। अब इसमें डीएनए कहां पर होगा? डीएनए आपके वाटर की लेयर में होगा, एक्वियस लेयर में होगा। वो आपका प्योर डीएनए है जिसको आप पिपेट से रिमूव कर सकते हो, उस लेयर को दूसरी ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपका डीएनए सोल्यूबल फॉर्म में है, एक्वियस कंडीशन में सोल्यूबल फॉर्म में है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्वियस कंडीशन में ही है लेकिन सोल्यूबल फॉर्म में है। तो अगर आपको इसको प्रेसिपिटेट फॉर्म करना है तो कुछ और मेथड्स यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक के तो यहां तक के देखो कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले टिश्यू को डिस्टर्ब किया, सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया, उसके बाद प्रोटीन्स को और लिपिड्स को रिमूव किया। अब डीएनए को स्टोर करना है, क्योंकि डीएनए हमको अलग अलग चीजों के लिए यूज करना है। अलग अलग चीजें यानी कि पीसीआर के लिए, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम इस डीएनए को यूज करेंगे। ये डीएनए जो आपको क्राइम सीन के ऊपर जो सेल्स मिली है, इट मे बी ब्लड, इट मे बी सीमन, इट मे बी other tissues, from that you have collected this DNA. that DNA needs to be analyzed. उसका एनालिसिस हम अलग अलग टेक्निक से करते हैं, पीसीआर से करते हैं या फिर आरएफएलपी से करते हैं, है ना? तो उसके लिए इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उस स्टोरेज में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, उसके लिए एक बफर आता है नोन एज टीई बफर, ट्रिस ईडीटीए बफर। ट्रिस ईडीटीए बफर का ये कंपोजिशन है 10 मिलीमोलर ट्रिस सीएल एंड 1 मिलीमोलर ईडीटीए एट पीएच 8 पीएच पे इसको आप स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आपको ज़्यादा दिनों तक के स्टोर करके रखना है तो आप उसमें ईडीटीए ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा, विच इज़ हैविंग द एबिलिटी टू रिमूव द cations like calcium ions, and for more time you can store it for at minus 80 degrees Celsius, which is for long term storage. See, now during this process of DNA extraction, ये प्रोसेस है, ये कुछ प्रिंसिपल्स है डीएनए एक्सट्रैक्शन के। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो सकता है कि अगर आपका अगर ये जो सी अगर आपका सॉरी देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर आपका एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया है, ब्लड हो गया या फिर बोन है जिसमें से आपने सैंपल कलेक्ट किया, और जो आपको कंपेयर करना है, जिसको आप रेफरेंस सैंपल बोलोगे, जिस पर्टिकुलर सस्पेक्ट से आपने उसको कलेक्ट किया है, अगर ये दोनों मिक्स हो गए तो देर इज अ वेरी वास्ट काइंड ऑफ कंटेमिनेशन बिटवीन दिस टू, इजंट इट? दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो जाएगा अगर आप दोनों सैंपल्स को एक साथ प्रोसेस करते हो। तो उस कंडीशन में आपको कोई कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, दोनों अगर मिक्स होते हैं तो। ठीक है, तो उसके लिए अवॉइड करना है कि आप एक ही जगह पर दोनों सैंपल्स को प्रोसेसिंग ना करो, यानी कि आप अलग अलग लैब्स में इसको प्रोसेस करो या अलग अलग रूम्स में इसको प्रोसेस करो, या फिर अगर आपके पास एक ही रूम है या फिर एक ही लैब है जहां पर आप डीएनए एक्सट्रैक्शन का काम करते हो, तो आप अलग अलग टाइम पे इसको प्रोसेस करो। यानी सैंपल एविडेंस जो आपने कलेक्ट किया है उसको अलग टाइम पे प्रोसेस करो, और जो रेफरेंस आपने कलेक्ट किया है उसको अलग टाइम पे प्रोसेस करो फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। ठीक है, सो दिस इज some of the methods, some of the basic principles of DNA extraction. Now based on these DNA extraction principles, there are some methods that can be used. ये प्रिंसिपल्स थे अभी तक, इसके ऊपर
अलग अलग मेथड्स हम यूज कर सकते हैं बेस पे, इसके बेसिस पे। कौन कौन सी मेथड्स है? सॉल्वेंट बेस्ड, जो कि अभी हमने देखी थी फिनॉल क्लोरोफॉर्म वाली, सॉल्वेंट बेस्ड मेथड। इसमें फॉरेंसिक एप्लीकेशन के लिए आप आरएफएलपी कर सकते हो, पीसीआर एनालिसिस कर सकते हो, इसका जो डीएनए मिलेगा। इसमें प्यूरिटी जो है वो हाई लेवल पर होती है। इसमें आपको जो स्ट्रैंड मिलेगा, डीएनए स्ट्रैंड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा। जो क्वांटिटी मिलेगी डीएनए की इस मेथड से अगर आप प्रोसेस करते हो तो वो भी ज़्यादा मिलेगी। इसका जो आउटपुट है, इसको करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, इस प्रोसेस को करने के लिए टाइम ज़्यादा लगता है, और ये ऑटोमेटेड प्रोसेस अडॉप्ट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें मैन्युअली करनी पड़ेगी। कौन सी मेथड में? सॉल्वेंट बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन में। इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो केमिकल्स आप में यूज करते हो, दोज आर टॉक्सिक सॉल्वेंट्स। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल, फिनॉल इज अ टॉक्सिक सॉल्वेंट। it can cause high amount of irritation, skin irritations. So this is one of the drawback. And also during this method you need to go for multiple transfer steps, यानी कि एक ट्यूब से निकाल कर दूसरी ट्यूब में डाला, फिर से तीसरी ट्यूब में आपको डालना पड़ेगा। अलग अलग ट्रांसफर स्टेप्स है, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर स्टेप्स है इस पर्टिकुलर मेथड में। तो इस ट्रांसफर स्टेप्स में डीएनए का लॉस ऑफ डीएनए is a chance in this particular method, this basic solvent based method. So that is one of the disadvantage of your solvent based method. What is the second method that can be used? Extraction method, boiling. You can go for boiling extraction method, जहां पर आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा इफ यू विल अलाउ द सेल। टिश्यू डिस्ट्रप्शन में आप हमने देखा था बॉईल करते हैं उसको, लेकिन जब आप बॉईल करोगे, ड्यूरिंग बॉइलिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर एट हायर टेम्परेचर, because you are going to boil this suspension at higher temperature like 100 degrees Celsius. And you know, in PCR when you go up to 97, your DNA get separated. आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो दो अलग अलग स्ट्रैंड बन जाते हैं, है ना, एट 97। तो इस स्टेप में, बॉइलिंग स्टेप में क्या होता है, जो डीएनए आपको मिलेगा वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, और जो साइज भी, सॉरी, जो क्वांटिटी भी मिलेगी वो भी कम मिलेगी। इसका समय बहुत कम लगेगा आपको इसको यूज करने के लिए, इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए समय लगेगा कम एज कंपेयर्ड विथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। एंड ऑल्सो वन मोर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। तो ये एक मेथड है सेकेंड, बॉइलिंग। लेकिन हमको ये एक्सट्रैक्टेड डीएनए जो है वो सिर्फ पीसीआर के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको आरएफएलपी करना है, आरएफएलपी क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इस कंडीशन में आपको डबल स्टैंडर्ड डीएनए चाहिए, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है बॉइलिंग मेथड का। देन देयर इज सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड। इन सिलिका बेस्ड एक्सट्रैक्शन मेथड, what is the application of this method? The application of this method is you can go for RFLP and also for PCR. सिलिका बेस्ड यानी कि SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें क्या करते हैं कि इसके कुछ कॉलम्स आप बनाते हो सिलिका की ये हम अलग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। यहाँ पर एक कॉलम आपने बनाया सिलिका का, जिसके अंदर सिलिका भरा हुआ है। सिलिका, जैसे हम सिलिका जेल देखते हैं टीएलसी में, उसी तरह से यहाँ पर एक अलग तरह का सिलिका प्योर फॉर्म में होता है। इस सिलिका के ऊपर आपका डीएनए रिवर्सिबली बाइंड हो जाता है, एड्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। इसको बोलेंगे सिलिका बेस्ड डीएनए एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर प्यूरिटी जो है वो हाई मिलेगी, डीएनए भी डबल स्टैंडर्ड मिलेगा, क्वांटिटी भी ज्यादा मिलेगी।
टाइम भी कम लगेगा, एंड इट कैन गो फॉर ऑटोमेशन ऑल्सो। इसको आप ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी कर सकते हो, यानी कि अभी नाउअडेज देर आर सर्टन इंस्ट्रूमेंट, इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक डीएनए एक्सट्रैक्टर्स, जिसमें कि आपको इस तरह के कॉलम्स यूज करने होते हैं, सिलिका कॉलम्स, जो कि आपको सिर्फ सैंपल को पुट करना है और एट द एंड यू विल गेट प्योर फॉर्म ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली। दिस इज द मेथड नोन एज ऑटोमेटिक डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो ये कुछ बेसिक मेथड्स है और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है। इसके बाद कमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेथड्स है, लाइक जो तीनों मेथड्स हम देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं इस टेबल में, वही तीनों मेथड्स हम वन बाय वन फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि